Last week we studied from the Word of God about the ministry of Jesus when he was on the earth 2000 years ago. 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आए थे हमने सीखा उनकी सेवकाई क्या थी. He came as a Messiah, वो एक मसीहा बनके हमारे जीवन में आए. right? Amen. So 2000 years ago he came, he did everything that was required for our deliverance. हमारे छुटकारे के लिए जो कुछ जरूरी था यीशु मसीह 2000 साल पहले किया. He came, he took our sin on himself. उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया. He died for us. वो हमारे लिए उन्होंने मृत्यु का अंगीकार He किया. was buried for us. वो गाड़ दिए गए He rose up from the grave और again. फिर से जी उठे. And then we see one thing wonderful, फिर हम एक अद्भुत बात देखते हैं. that Jesus went up to heaven. वो स्वर्ग तक उठा लिए गए. But when he went up to heaven, पर जब वो स्वर्ग में गए he did not go as a Messiah. वो मसीहा बनकर नहीं गए. Listen carefully. ध्यान से सुनिए इस बात When को. he came from heaven, जब वो स्वर्ग से आए he came as a Messiah. वो मसीहा बनकर आए. But when he went to heaven, पर जब वो वापस स्वर्ग को he गए did not go as वो Messiah. मसीहा बनकर नहीं गए. Nobody needs deliverance there. वहां पे किसी को छुटकारे की जरूरत There नहीं is है. joy and peace. वहां पे आनंद और शांति है. There is nothing missing and nothing वहां कुछ भी broken. छूटा हुआ नहीं है, कुछ भी टूटा हुआ नहीं है. Nobody needs healing वहां there. पे किसी को चंगाई की जरूरत नहीं. So when Jesus went there, जब यीशु वहां गए you'll find something amazing. वहां पर आप एक अद्भुत बात देखते That he हैं. did not go as Messiah to heaven. वो मसीहा बनकर स्वर्ग नहीं गए. But the Bible tells us और वचन बताता है that when he ascended on जब वो heaven, स्वर्ग पे उठाए गए he entered into the heavenlies as your and my high priest. वो आपके और मेरे महायाजक बनकर स्वर्ग में गए And he sat down at the right hand of his Father, और पिता के दाहिनी ओर बैठ गए. वो the most highest, जो सबसे ऊंचे पर हैं, exalted Jesus, सबसे ऊंचे उठाए गए. gave him उनको a name above every other हर name. नाम के ऊपर उनका नाम बढ़ाया गया. And then gave him this privilege of being a high priest for you and I. और आपके और मेरे लिए उनको एक महायाजक करके नियुक्त किया And the गया. Bible says he became our advocate. और वचन कहता है वो हमारे यहाँ वकील बनकर वहां पर हैं. So currently what Jesus is doing, अभी जो यीशु वर्तमान में कर रहे हैं he is in the role of a high priest for you and वो I. आपके और मेरे लिए एक महायाजक हैं. Now one day और एक दिन he's going to come back to the वो earth. वापस आने वाले हैं. And when he comes back again और जब वो वापस आएंगे for his bride, अपनी दुल्हन के he लिए is not coming as a Messiah. वो मसीहा बनकर नहीं आएंगे. He is not coming as a high priest. वो एक महायाजक बनकर नहीं But when he आएंगे. comes again, पर जब वो दोबारा आएंगे when he'll be appearing to us on the clouds, जब वो बादलों पे हमारे सामने प्रकट होंगे guess what? सोचिए To the world he will come like a judge. वो संसार के लिए एक न्यायी के तौर पर आएंगे. But to a born again child, he will come like a bridegroom. पर फिर से जन्म लिए बच्चों के लिए वो एक दूल्हा बनकर आएंगे. Then he is not coming as a high priest. वो एक महायाजक बनकर नहीं Then आएंगे. he is not coming as a वो Messiah. मसीहा बनकर नहीं He आएंगे. is coming as your and my bridegroom. वो आपके और मेरे दूल्हे के समान आएंगे. And so these are three roles of Jesus ये तीन अलग अलग यीशु की सेवकाई है. as my Messiah, my Redeemer. एक मेरे मसीहा मेरा छुटकारा देने वाला. When I understand him as that, जब मैं उनको वैसे समझता हूँ I get delivered. मैं छुटकारा पाता हूँ. When I understand his role as a high priest, जब मैं उनकी सेवकाई को महायाजक के तौर पे समझता I हूँ can enter into most holy place without any problem. मैं उस परम पवित्र स्थान पर प्रवेश कर पाता हूँ बिना किसी And संकोच के. when I understand him as my bridegroom, जब मैं उन्हें अपने दूल्हा करके समझता हूँ oh, there is no fear of future. फिर मुझे भविष्य का कोई डर नहीं होता. Hallelujah. हालेलुया. Now Messiah has taken care of my past. जो मसीहा है उसने मेरे बीते हुए अतीत का काम कर दिया है. High priest takes care of my presence. जो Present. जो महायाजक है वो मेरे वर्तमान की सुधि लेता है. And my bridegroom will take care of my eternity. और जो दूल्हा है वो मेरे इटर्निटी के मेरे अनंत का सुधि लेगा. You understanding? क्या आप समझ पा रहे Now हैं? most people only understand Jesus as their Messiah. बहुत से लोग यीशु को सिर्फ मसीहा करके So समझते हैं. in their concept, इसलिए उनकी सोच में Jesus came, यीशु आए, dealt with my sin and sickness and curse, मेरे पाप से, मेरे बीमारियों से, मेरे शापों से उन्होंने my डील किया. failures, my iniquities, मेरे कम होने से, मेरे छुटकारे से उन्होंने डील died किया. on the cross, अपने आप को क्रूस पे दिया, washed my sins away, मेरे पापों को धो दिया, made me a new man, मुझे नया बना दिया and told me, और मुझे कहा I'm going to Father, मैं पिता के पास जा I रहा will हूँ, send you a helper, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा, but remember, पर ध्यान रखना now you must keep yourself pure. और अपने आप को शुद्ध रखना. आप If you don't, अगर तुम ऐसा ना कर पाए one day I'll come back मैं एक दिन आऊंगा and judge you और तुम्हारा न्याय करूंगा and put you to hell. और तुम्हें नरक में डालूंगा. This is what many believe. बहुत से लोग इस बात पे विश्वास करते हैं And many preachers preach like this. और बहुत से प्रचारक ऐसा प्रचार भी करते हैं. But do you know something? पर आपको बताऊं It's not true. ये सच नहीं है.
The truth of the word of God is परमेश्वर के वचन का सच ये है, Jesus, my Messiah, यीशु जो मेरा छुटकारा देने वाला है, मसीहा है, is also my high priest. वही मेरा महायाजक भी है। The one who is my high priest जो मेरा महायाजक है and my Messiah और मेरा छुटकारा is है also my bride. और वही मेरा दूल्हा भी है। I need to understand that. मुझे ये बात समझना जरूरी है। Last Sunday we saw in detail about the most amazing thing about Messiah is और पिछले सप्ताह हमने बहुत विवरण करके देखा उस मसीहा के बारे में, that he not only just redeems me, ना वो सिर्फ मुझे छुड़ाता है but he reconciles me to the Father. और मुझे मेरा पिता से दोबारा मेल मिलाप भी कराता And है। not only just I as first Adam met God every evening, I meet him like that. It's not like that. जैसे पहला आदम पिता से शाम को मिलता था, ये वैसा नहीं है। I don't meet God like that. अब मैं पिता से वैसे नहीं मिलता। But now Jesus and I became one. अब यीशु और मैं एक हो गए हैं। Hello. Now something amazing happened. कुछ अद्भुत हुआ है। The Bible says वचन कहता है God and man, they both become one. जो परमेश्वर और जो मनुष्य वो एक हो गए। We saw in the scripture. हमने वचन में देखा इसको। He who fellowships with the Lord becomes one spirit with him. हमने देखा जो मसीह की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Remember last Sunday we saw it. हमने देखा इसको पिछले सप्ताह। He who fellowships with the Lord becomes one spirit. जो प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Now listen. समझिए इस बात को। When husband and wife get married, they become one flesh. जब पति और पत्नी विवाह करते वो एक फ्लैश हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते Paul हैं। says, if you go to prostitute, you become one flesh with her. पॉल कहता है जब तुम किसी वेश्या के पास जाते हो उसके साथ एक देह हो जाते हो। But in Christ, पर मसीह में it's not a fleshly union. ये शरीर का एक होना नहीं It है, is a spiritual union. ये आत्मा में एक होना है। Where your spirit and God's spirits become one. जब आपकी और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है। When apostles saw this miracle, जब प्रेरितों ने इस बात को समझा, they didn't know what to call this new spirit. उन्हें समझ नहीं आया इसको क्या कहें, So they called it new creation. इसलिए उन्होंने उसको नई सृष्टि करके कहा। What they called it? New creation. All things are past, old things are gone. सारी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई हैं, Everything has become new. सब कुछ नया हो गया है। How could Paul say that? ये कैसे पौलुस कह सकते हैं? Because he saw क्योंकि उन्होंने देखा old Paul died. पुराना जो पौल है वो मर गया, The new Paul who rose up जो नया पौल है वो जिंदा हुआ। is no longer Paul. अब वो पौल नहीं है। I no longer live. Christ lives in me. अब मैं जीवित नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। So once he understands that mystery, जब उन्होंने इस रहस्य को समझा, that happened as he became the born again child of God, जब वो नए सिरे से उन्होंने जब जन्म लिया, he began to understand I am no longer natural, I am a supernatural. अब उन्हें समझ में आया कि मैं स्वाभाविक नहीं हूं, मैं आत्मिक हो गया हूं। Now Messiah has done that for you. वो मसीहा ने आपके लिए किया है। You and I became one with Christ. आप और मैं मसीह के साथ एक हो जाते हैं। Jesus prayed, यीशु ने प्रार्थना की, Father, पिता, as you and I are one, जैसे- let them be one. जैसे आप और मैं एक है वैसे ये और मैं भी एक हो जाए। Amen. And in Messiah, और मसीहा में that is what Jesus does. यीशु ने ये सब आपके मेरे लिए किया है। In my spirit, मेरी आत्मा में it is done. वो हो चुका है, Already done. हमेशा के लिए। The day I accepted Jesus as my Savior and Lord, that miracle happened. जिस दिन मैंने यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार किया, उस दिन ये चमत्कार हुआ। Now your spirit man is not developing. अब आपका जो आत्मिक मनुष्य है वो बढ़ नहीं रहा। What is happening क्या हो रहा है? is your mind is getting renewed. आपका मन नया हो रहा है। Now God keeps you alive यीशु प्रभु आपको जीवित रखते हैं, so that who you have become in the spirit, जो आत्मा में आप बन गए हैं, now by renewing your mind through the word of God, वचन के द्वारा अपने मन के नए हो जाने से you will no longer live by the worldly standards, अब आप संसार की रीति पे जीवन नहीं जीते, but you will live by the spiritual standard. जो आपका आत्मिक रीति है आप उस पे जीवन जीते हैं। Now you will live in spirit, अब आप आत्मा में जीते हैं, not by your understanding, अपनी समझ से नहीं, not by your ways of doing things, अपने तरीके से चीजों को but करने से by नहीं। that spirit which has become one with God. आप उस आत्मा से जीते हैं जो प्रभु के साथ एक हो गई है। Now when you have become one with God, जब आप प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, you don't say, oh God, if it is your will, give it to me. आप ये नहीं कहते प्रभु ये अगर तेरी मर्जी है तो मुझे दे।
when you become one with God, जब आप प्रभु से एक हो जाते हैं, everything that is yours is जो mine. कुछ प्रभु का है वो आपका हो जाता है. So I thank you that you have given to me. और आप धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने मुझे दिया है. My prayer life changes. मेरी प्रार्थना करने का तरीका बदल जाता है. From asking, I am thanking. मैं मांगने के बजाय धन्यवाद करता हूँ. Because now I have unlimited access. अब मेरे पास बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला एक्सेस है. I am no longer limited. अब मैं सीमित नहीं हूँ. I am truly unlimited. मैं पूरी रीति से असीमित हो गया हूँ. Because greater is He who is in me than he who is in the world. क्योंकि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है. Amen? Amen. You understood that? क्या आप समझ पा रहे हैं? Last week we looked into this very हमने carefully. पिछले सप्ताह इस बात को बहुत विवरण के साथ देखा है. This week I want to take you a little deeper into मैं the थोड़ा word. और आज इस सप्ताह आपको गहराई में लेके जाना And चाहता I हूँ. want you to read the word with me. और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ वचन को पढ़ें. As we read the word, जब हम वचन पढ़ते हैं we're going to believe. हम उसमें विश्वास And करेंगे. my prayer is, God, remove every kind of shades that religion has put in our eyes. मेरी प्रार्थना है कि हर उस बात को उस छिलके को परमेश्वर हटा दे जो हमारी आंखों पे पड़ा है. जो धर्म ने हमारी आंखों में जो डाला. धर्म पे हमारे आता है. Religion has taught us how to look to God. धर्म ने हमें सिखाया परमेश्वर की तरफ कैसे देखना है. But Messiah is teaching us something else. पर मसीहा हमें कुछ और सिखा रहा है. Amen? Amen. Only in Messiah you can call that holy God your Abba, your Father. उस मसीहा में ही आप परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकार सकते हैं. Amen? Amen. Amen? So let's look into word. Open your Bibles with me. अपने वचन को खोलेंगे. We're going to read first thing, Hebrews chapter 3 verse number 1. इब्रानियों उसका तीसरा अध्याय उसका पहला पद. We're going to start from there. हम वहां से पढ़ेंगे. Hebrews chapter 3 verse number 1. इब्रानियों तीसरा अध्याय पहला पद. Come on, everybody. Are you there? आप पहुंच गए? We are going to majorly dwell on book of Hebrews today. आज हम अधिकतर इब्रानियों की किताब से सीखेंगे. And see what Bible says in Hebrews chapter 3 verse number 1. देखिए इब्रानियों उसका तीसरा अध्याय उसके पहले पद में Samir, क्या go लिखा ahead, है. read it for us. सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो. Okay. Who is Paul writing this to? किसको लिख रहा है किताब पौल? ये बात किसको लिख रहे हैं? To the world संसार को or to the church? या कलीसिया को? You know the word Hebrew means set apart. जो शब्द हिब्रू इसका मतलब है अलग किए हुए लोग. Set apart. अलग किए गए लोग. You go to a shopping mall, आप जब एक किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, you look at a nice blazer, आप एक बहुत खूबसूरत ब्लेजर को देखते हैं and then you tell the shopkeeper, keep that one up separate. और आप उसको कहते हैं ये मेरे लिए अलग करके रख दो. And what you like, जो आपको पसंद आता है you pay money and buy. आप उसको पैसा देकर खरीद लेते हैं. God looked at you out of all creation. परमेश्वर ने सारी सृष्टि में आपको देखा He said, this one, set him apart. और कह के कहा इसको मेरे लिए अलग कर दो, This one, set him apart. इसको मेरे लिए अलग कर दो. And paid the price of his own blood and obtained it. और अपने रक्त से आपका मोल देकर आपको पा लिया. Hallelujah. Hallelujah. I want you to realize this. मैं चाहता हूँ इस बात को महसूस करें The आप. Bible says something. वचन कहता है You who are set apart. आप जो अलग किए गए लोग हैं. And in English it says, holy brethren. और इंग्लिश में लिखा है पवित्र भाइयों. That includes sisters. उसमें बहनें भी हैं. Now why is Paul calling them holy? क्यों पौलुस उनको पवित्र कह रहे हैं? Because they have believed in Jesus. क्योंकि उन्होंने यीशु पे विश्वास They किया have है. become born again. उन्होंने नया जन्म पाया है. Now their faith on Christ Jesus had made them holy. और उनका जो विश्वास यीशु पे है उसने उन्हें पवित्र किया The है. blood of Jesus has washed their sins away. यीशु के रक्त ने उनके पापों को अलग कर So दिया है. now Paul doesn't, or the writer of the Hebrew doesn't identify them with their past. इसलिए जो हिब्रू पत्रिका लिखने वाला है उनके पाप से उनको जोड़कर नहीं देखता. He says holy. उन्हें पवित्र कहता है. Now it is not clear if Paul wrote it. ये स्पष्ट नहीं है कि ये पत्री पौलुस ने लिखी I है. believe Paul wrote it. मेरा विश्वास है कि पौलुस When ने you read लिखा है. the rest of the letters, you begin to know definitely Paul wrote it. अगर आपने पौलुस की बाकी पत्रियां पढ़ी तो आप मान लेंगे कि ये पत्री भी But पौलुस ने लिखी theologians है. believe there could be many other authors as पर well. बहुत लोग मानते हैं कि और भी हो सकते हैं. Well, who wrote it is not the question today. किसने लिखा है ये बहुत जरूरी नहीं The है. question is, सवाल ये है God's word is calling his people holy. कि परमेश्वर का वचन अपने लोगों को पवित्र कह के बुला रहा है. What is it saying? क्या कह रहा है यहाँ पर?
Holy brethren. पवित्र भाइयों, What does it say? देखिए लिखा है पवित्र भाइयों, Come on, holy brethren. पवित्र भाइयों। I want you to do something. मैं चाहता हूं आप ये करें, Look to your neighbor अपने पड़ोसी को देखें, and say, you are holy. कहिए आप पवित्र हैं, You are holy. आप पवित्र हैं, कहिए You are holy. आप पवित्र हैं, You are holy. आप पवित्र हैं। If you believe in Jesus, अगर आप यीशु में विश्वास if करते your हैं, sins are washed away by the आपके blood of the पाप Lamb, यीशु के रक्त से धो दिए गए हैं, you really are holy. आप सचमुच पवित्र हैं। Now you may have done bad things. आपने वो काम किए होंगे, You may have thought bad thoughts. आपने बुरे विचार रखे You होंगे, may have spoken wrong things. आपने गलत बातें कही होंगी, But you know what? पर आपको पता है So did the people in the book of Hebrews lived. जो इब्रानी में जो लोग हैं इन्होंने भी ऐसा किया है। But the Bible doesn't say, if you have not done anything wrong, you are holy. वचन ये नहीं कहता कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है इसलिए आप पवित्र हैं। God looks at them, says, holy. परमेश्वर उन्हें देखता और कहता है पवित्र। Now why? We're going to discover that today. क्यों कहता है हम देखेंगे इस बात को। Okay, so what does Bible says? देखिए वचन में क्या लिखा है, You who are holy, तुम जो पवित्र हो consider your heavenly calling. अपने स्वर्गीय बुलाहट को समझो। What do you need to focus on? आपको किस बात पे ध्यान देना है? Heavenly calling. अपनी स्वर्गीय बुलाहट को समझो। What do you need to consider? किस बात पे ध्यान देना है? Come on, जोर से बोलो. What do you need to consider? किस बात पे आपको ध्यान देना है? Earthly reality or heavenly calling? जो यहाँ की सच्चाई है उस पे या जो स्वर्गीय बुलाहट है उस पे? There are two things. दो चीजें हैं। My flesh and my mind is focused on earthly reality. जो मेरा मन है, जो मेरा शरीर है, वो इस धरती की सच्चाइयों पे ध्यान देता है, But my heart, पर जो मेरा हृदय my है, spirit, मेरी जो आत्मा है, is focused on heavenly calling. वो उस स्वर्गीय बुलाहट पर ध्यान देती And है। if you, as a born again child, learn to focus on heavenly और एक calling, नए जन्मे बच्चे के समान अगर आपने उस स्वर्गीय बुलाहट पे ध्यान देना सीख लिया, you will overcome the problems of this world. आप इस संसार की सारी समस्याओं पे विजय पाएंगे। John said, he who is born of God overcomes the world. जॉन कहता है जिसने नया जन्म पाया है, परमेश्वर से पाया है, वो संसार पे जय प्राप्त करता है। Amen. संसार पे जय प्राप्त करता है. Hallelujah. Now please understand. देखिए ध्यान से, The Bible says, वचन कहता है you focus on heavenly calling, स्वर्गीय बुलाहट पे ध्यान दो, but how to focus? पर कैसे करोगे आप ये? How do I focus? कैसे उस बात पे ध्यान दोगे आप? Simple. बहुत साधारण है, By believing and confessing Jesus as your apostle and high priest. यीशु पर एक महायाजक और प्रेरित करके विश्वास करने से, Not as Messiah. मसीहा करके नहीं। See, when it comes to heaven, जब स्वर्ग की बात होती है, I don't need Jesus as my Messiah. मैं यीशु को एक मसीहा करके नहीं जरूरत है मुझको, I need Jesus as my apostle and my high priest. मुझे यीशु को एक प्रेरित और महायाजक करके समझना है। Listen, why? क्यों? Messiah is needed on earth. मसीहा की जरूरत यहाँ धरती पर है, High priest is needed in heaven. महायाजक की जरूरत स्वर्ग में है। We're going to look into why. हम देखेंगे ऐसा क्यों है। I want you to understand. मैं चाहता हूँ इस बात को When समझें। you study the word, जब आप वचन पढ़ते हैं, pay attention to the details of the word. जहाँ पे जो डिटेल है, जो विवरण है, उस पर ध्यान दीजिए। Now something beautiful is there. बहुत कुछ खूबसूरत बात है यहाँ When पर। you study the word, जब आप वचन पढ़ते you will हैं, begin to discover आप देखेंगे the role of an apostle is different, the role of a high priest is different. जो प्रेरित है उसका कार्य अलग है, जो महायाजक है उसका कार्य अलग है। I'll show you मैं आपको दिखाऊंगा something from the scripture. इस वचन से। You know, let's look into the word. Hebrews chapter 4, verse number 14 to 16. इब्रानियों उसका चौथा अध्याय उसका 15वां और 16वां 14, पद, 14 to 16. 14 से 16वां पद। Okay, Hebrews chapter 4, verse number 14 to 16. इब्रानियों उसका चौथा अध्याय उसका 14 से 16वां पद। Let's look at it. देखिए क्या लिखा है। Go for it. सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, Hold on. Is it, the Bible says, so now when we have such a high priest, क्या ये ऐसा लगा जब हमारा ऐसा महायाजक है? महायाजक था, महायाजक है या महायाजक होने वाला है? जोर से बोलो. Is it past? Is it present? It is future. So what is the present day ministry of Jesus? यीशु की वर्तमान में सेवकाई क्या है? जोर से बोलो. जोर से बोलो. जोर से बोलो. Come on, loudly. जोर से। Amen. I want you to get it into your spirit. मैं चाहता हूँ इस बात को अपनी आत्मा में आप स्थिर कर लें।
current day, Jesus is not Messiah. आज यीशु मसीहा नहीं है। In heaven, स्वर्ग में he is high priest. वो महायाजक है स्वर्ग में, On earth, और धरती पर he came as Messiah. वो मसीहा बनकर आए। In heaven, वो स्वर्ग he में went as high priest. वो महायाजक बनकर That's गए। why Bible says. इसलिए वचन कहता So है now अब we have such a high priest. हमारे पास ऐसा बड़ा महायाजक है। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए इस बात We को। as a church एक कलीसिया के तौर पे don't have the concept of a high priest हमारे पास महायाजक का समझ नहीं है। because we associate that concept with the Old Testament. हम इस बात को सिर्फ पुराने नियम में संदर्भ में देखते हैं, And we always think about और that हम- that was in the days of Moses. और हमें ऐसा लगता है ये सिर्फ मूसा के दिनों में था, And now God has redeemed that everything. Now it is church and there is a pastor. और अब सब कुछ बदल दिया है। परमेश्वर ने कलीसिया दी है और खादिम दिए There हैं। are fivefold ministries: यहाँ पे 5 सेवकाई हैं, apostle, pastor, evangelist, प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, yeah, उपदेशक pastor and teacher. और रखवाले। Okay, there is fivefold ministry. यहाँ पांच मिनिस्ट्रीज हैं, But we forget about the most important ministry that sends this fivefold ministry. पर हम भूल जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सेवकाई जिसके द्वारा ये 5 सेवकाई आई हैं। Without a high priest, no one else becomes priest. इस महायाजक के बिना कोई और याजक बन ही नहीं सकता। He is the head of the fivefold ministry. वो इन 5 सेवकाई का हेड है, सर है, He is the boss. वही बॉस है। Under his unction, fivefold ministry उसके functions. अंदर ये सारे सेवकाई काम करते In हैं। days to come, I'm going to teach you about fivefold ministry. आने वाले दिनों में इन 5 सेवकाई पे आपको पढ़ाऊंगा। But today I want to teach you about who births this ministry. पर आज पढ़ा रहा हूं किसके द्वारा ये 5 सेवकाई जन्म It लेती is the है। high priest. वो महायाजक है, He is the one who appoints. वो है जो इनको अपॉइंट करता The है। children of Aaron became the high priest after Aaron. जो हारून के बच्चे हैं वो हारून के बाद महायाजक का काम करते हैं, महायाजक बनते थे. महायाजक बनते थे। But they would be priests and Levites. वो याजक और लेवी होते थे। Why? क्यों? Out of all tribes of Israel. सारे इजराइल के समाज में से Because Aaron was the first high priest, हारून पहला महायाजक था his children became priests. और उसके बच्चे फिर महायाजक And बने। the next high priest from his family after his death. और उसके मरने के बाद उसी परिवार में से लोग नए महायाजक Now बने। listen carefully. ध्यान से सुनिए इस बात को। Because Jesus became the high priest, यीशु चूंकि पहला महायाजक बने, you and I become the royal priesthood. इसलिए आप और मैं राजकीय याजकों का समाज है। Hello? If you never receive from the ministry of the high priest, अगर आप उस महायाजक की सेवकाई से नहीं लेंगे, you will never be able to walk as a royal priesthood. आप कभी भी उस राजकीय याजक की सेवा में नहीं चल पाएंगे। You will, if you continue to associate Jesus as Messiah, जब तक आप यीशु को मसीहा करके उससे जुड़े रहेंगे, all your Christian life will be, Father, forgive me, I committed this sin. Lord, forgive me, I committed this sin. And your every day will be about sin consciousness. आपका जीवन ऐसे बीतेगा, प्रभु क्षमा कर मुझसे गलती होगी, पिता क्षमा कर मुझसे गलती होगी, और ऐसे ही आप लगातार सिन के आभास में अपना जीवन You will जिएंगे। always struggle. आप लगातार संघर्ष करेंगे, You'll never walk in victory. आप जय में नहीं चल पाएंगे। If you want to walk in victory, अगर आपको जय में चलना if है, you want to live a sinless life, आपको पाप रहित अगर जीवन जीना Pastor, what are है, you saying? Sinless life? आप खादिम आप क्या कह रहे हैं, कैसे संभव है पाप? That's what I'm telling you. यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। He who is born of God does not commit जो sin. परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। That's what John said. ये यूहन्ना ने कहा है, He who is born of God does not commit जो sin. परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। If he does not commit sin, what does he do? वो पाप नहीं करता तो क्या करता He है? does not live in earthly reality. He lives in the heavenly reality. वो यहाँ धरती की सच्चाइयों में नहीं, वो स्वर्ग की सच्चाइयों में जीता है। How? कैसे? How can an earthly man live a heavenly reality? कैसे एक धरती का मनुष्य स्वर्ग की सच्चाइयों में जी सकता The है? way Jesus lived. जैसे यीशु ने जिया, He was tempted in every way, वो हर तरीके से परीक्षा में गया, yet came out of sin. पर वो पाप में नहीं पड़ा और बाहर आया, Yet without blemish, और बिना किसी दाग के वो बाहर yet आया, without fault, बिना किसी गलती के बाहर yet आया, without sin. किसी पाप के बिना बाहर आया। How, Lord? कैसे हुआ The ये? simple aspect. इसका रीजन ये है, He understood the ministry of high priest. वो महायाजक की सेवकाई को समझता है। There is an anointing of the high priest. एक अभिषेक है जो महायाजक पर When है। you enter in that anointing, जब आप उस अभिषेक में प्रवेश करते हैं, that anointing will do things for you that you have no idea. आपके लिए वो अभिषेक काम करेगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। From today,
आज से something is going to change in your walk with the Lord. कुछ आपके जीवन में हमेशा के लिए बदल जाएगा प्रभु के I साथ tell चलते you, something is going to break in your spirit. कुछ बदल जाएगा, टूट जाएगा आपके You आत्मा will में। never suffer. आप आगे संघर्ष नहीं करेंगे। Satan will no longer be a problem for you. शैतान आपके लिए आगे समस्या नहीं रहेगा। Sin will no longer be a problem. पाप for you. आपके लिए समस्या नहीं रहेगा। Curse no longer will be a श्राप problem आपके for लिए you. समस्या नहीं रहेगा। Fear no longer will be a डर आपके problem लिए for you. समस्या नहीं रहेगा। Why? क्यों? Because you will understand royal priesthood. आप उस राज के याजक होने की बात को समझ पाएंगे। Once you become royal priesthood, जब आप राज के याजक हो जाते oh, हैं, something is amazing. कुछ हो जाता है। Guess what happens? देखिए क्या होता The है। Bible declares, वचन कहता in है, verse number 14, 14 पद कहता we है, have a great high priest. हमारे पास एक बड़ा महायाजक है। He makes us royal priesthood. वो हमें राज के याजक बनाता है। And the Bible declares, और वचन में लिखा है, he entered into the heavenlies, वो स्वर्ग से होकर आया है। the Son of God, Jesus. परमेश्वर का पुत्र यीशु। So now let us hold fast the confession of our faith. तो हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। Proclaim this from your mouth. इसको अपने मुंह से बोलिए, अंगीकार कीजिए। Things will change. चीजें बदलेंगी। See, I'll show you. अब मैं आपको दिखाता Next हूँ। verse, verse number अगला पद 15. कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। What does Bible say? वचन क्या कह रहा है? He understands your weakness. वो हमारी दुर्बलताओं को समझता है। My high priest जो मेरा महायाजक है, understands your weakness. वो मेरी निर्बलताओं को Now समझता understand है। something very clear. एक बात स्पष्टता से समझिए। In Bible, वचन में when you will study the life of prophets, आप भविष्यवक्ताओं का अगर जीवन पढ़ेंगे, they were the people who never understood weakness. वो कभी भी निर्बलताओं में नहीं रहे, नहीं समझे। If anybody is weak, अगर कोई दुर्बल है, they'll punish them. वो उसको दंड देते थे। All throughout the Bible. पूरे बाइबल में। But high priest is not like this. पर जो हाई प्रीस्ट है वो ऐसा नहीं है। He understands weakness. वो दुर्बलता को समझता He है। is kind. He is kind. वो दयालु है। He is patient. वो बहुत He is सहमी long है। suffering. वो बहुत देर तक इंतजार करता है। He advocates your cause. वो आपकी हर बात समझता है। Isn't it amazing that after resurrection, Bible doesn't call Jesus as our high prophet? आप ये अद्भुत नहीं कि यीशु के जी उठने के बाद वचन उसको हमारा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता करके नहीं पुकारती। It doesn't say he is my high prophet. वो ऐसा नहीं कहती है मेरा भविष्यवक्ता He है। says he is my apostle and he is my high priest. वचन कहता है वो हमारा प्रेरित है और महायाजक है। Why? क्यों? Because apostolic ministry builds क्योंकि जो प्रेरित की सेवकाई है वो बनाती है, and high priest stands in gap. और जो महायाजक है वो मध्यस्थ करता है, बीच में खड़ा होता है। Hallelujah. Jesus took a different role for you and I. यीशु ने आपके मेरे लिए एक अलग सेवकाई, So if you think if I do something wrong, God is going to punish me, it is from devil. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने गलत किया परमेश्वर आपको दंड देंगे, ये शैतान की ओर से है। Jesus is not going to punish you. यीशु आपको दंड नहीं देंगे। Why? क्यों? He is your high priest. क्योंकि वो आपके महायाजक है। He's not your prophet. वो आपके भविष्यवक्ता नहीं है, He's your high priest. वो आपके महायाजक है। Now let's look into the word. देखिए वचन में क्या लिखा है। Verse number 16. 16 पद कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Hallelujah. Now, अब because Jesus is your high priest, यीशु आपके महायाजक हैं, something needs to be done. कुछ करने की जरूरत है। Let us go to the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाने की जरूरत है। Now, do you remember the Ark of Covenant? आपको वाचा का संदूक स्मरण है? There were tablets of Moses in it. उसमें 10 आज्ञाएं थी, There was the rod of Aaron in it. उसमें हारून की छड़ी थी, There was the manna from it. उसमें मन्ना का पात्र था, And on top of it और उसके ऊपर was the mercy seat. वो प्रायश्चित का ढकना था। The दया क्या सिंहासन था, उसके ऊपर क्या था? दया का सिंहासन था. And the archangel covered it. और जो करूब थे वो उसके ऊपर छाया करते थे। Remember, this was the Old Testament. But the mercy seat was empty. पर वो जो दया का सिंहासन है वो खाली है। If you study Old अगर आप Testament पढ़ेंगे, carefully, ध्यान से अगर पढ़ेंगे, details, ध्यान से there's देखेंगे, nothing on the mercy seat. उस दया के सिंहासन में कुछ भी नहीं था। Who sits on that mercy seat? उस पे कौन बैठता था? The resurrected Lord.
my high priest. जो जी उठा है मेरा प्रभु, हमारा महायाजक। That is the seat of a high priest. वो महायाजक की जगह है, That is Jesus, वो यीशु की जगह है, who rejoiceth over judgment. वो जो न्याय पे जयवंत होता है, He is the Lord. वो प्रभु है। Now I want you to understand. मैं चाहता हूँ इस बात को समझें। The Bible says, वचन कहता है, now because Jesus is my high priest, चूंकि यीशु मेरा महायाजक है, boldly let's go to the throne of पूरे grace, हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट so आइए, that we may obtain mercy. ताकि हम पर दया हो। Why do you need mercy? आपको दया की क्यों जरूरत है? Because you have done something nonsense. क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, That's why you need mercy. इसलिए आपको दया की जरूरत है। But he says, in the time of need, you will get it. जब आपको जरूरत है वो आपको मिलेगा। When do you need it? कब आपको उसकी जरूरत When है? you do mistake. जब आप गलतियां करते And when हैं। you do mistake, जब आप गलतियां करते हैं, don't hide like Adam. Run to Jesus. आदम की तरह छिपिए मत, दौड़कर यीशु के पास आइए। When you fall in sin, जब आप पाप में गिरते हैं, rise up and run to God. उठिए और यीशु की तरफ दौड़िए। If the high priest of the Old Testament जो पुराने नियम का महायाजक है, commits a sin, वो पाप करता है, goes into most holy place, वो परम पवित्र स्थान पे जाता है he instantly dies. और वो मर जाता है। Right? We commit sin, जब हम पाप करते हैं, and the Bible is saying, run boldly to the most holy place. और वचन कहता है उस परम स्थान पे दौड़ कर जाइए। Why? क्यों? Because now you will not die. क्योंकि अब आप मरेंगे नहीं। Now there is a high priest. और वहां पर एक महायाजक है। His mission is to change you. उसका मिशन आपको चेंज करने का है। He stands for you. वो आपके लिए खड़ा होता है। I will show you something मैं else. आपको कुछ दिखाता हूँ। Read chapter 5, verse number 1 and 2. 5वां अध्याय उसका पहला दूसरा पद। Hebrews chapter 5, verse number 1 and 2. इब्रानियों उसका 5वां अध्याय से पहला दो पद। Okay, come on, let's read it. क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता Okay, है। hold on. Listen. सुनिए, The description of a high priest. जो महायाजक है उसका कार्य क्या है? Where is the high priest taken from? कहाँ से महायाजक लिया जाता The है? Bible says वचन कहता है every high priest, सब महायाजक, every high priest सारे महायाजक is taken from men. मनुष्यों में से लिए जाते हैं। Hello. The manufacturing belt of high priest is not heaven. जो महायाजक बनने की जो प्रक्रिया वो स्वर्ग की नहीं है, धरती की है। Every high priest has to be from men. जितने भी है वो उनको जरूरी कि वो मनुष्य में से हों। That is why Jesus became man so that he can become high priest. इसलिए यीशु मनुष्य बना कि वो आपके मेरे लिए महायाजक बन सके। Do you understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? If he did not become man, he can never become high priest. वो अगर मनुष्य नहीं बनता तो वो महायाजक भी नहीं बन And if he सकता था। cannot become high priest, the door of mercy cannot open. और अगर महायाजक नहीं बनता तो मर्सी का रास्ता नहीं खुलता। The law will prevail. वो जो व्यवस्था है वो जय हो Death जाती will prevail. मृत्यु जय हो जाती है। Satan will prevail. शैतान जय Hell पाता, will prevail. नरक जय पाता। So in order to stop all of it, इन सबको दबाने के the लिए great I am chose to become man. वो जो सबसे बड़ा है वो मनुष्य बना। Devil thought I'm going to kill him as a man. और शैतान ने सोचा कि मैं इसको मार दूंगा। He had no idea the man will die, but high priest will rise. उसे इस बात का पता नहीं था कि मनुष्य मरेगा लेकिन महायाजक बन He जाएगा। had no idea if high priest rise, what's going to उसे happen. नहीं पता था जब महायाजक खड़ा होगा तो क्या होगा। Forever, हमेशा के लिए humanity will have a hope. आप मनुष्य जाति के पास एक He आशा who होगी। runs to the high priest, his eternity is safe. जो महायाजक के पास दौड़ता है वो अनंत के लिए बच गया। The Bible says वचन कहता है every high priest is taken from man for man. जितने भी महायाजक लिए जाते हैं मनुष्यों से मनुष्यों के लिए लिए जाते हैं। Hello. High priest is taken from where? कहाँ से लिए जाते हैं महायाजक? From man. For whom? किसके लिए? Now listen carefully. ध्यान से सुनिए इस बात को। High priest is not for God. जो महायाजक है वो परमेश्वर के लिए नहीं है। Amen. He is for man. वो मनुष्यों के लिए है। Is it written in your Bible? देखिए आपके वचन में क्या लिखा है। High priest is not for God. जो महायाजक है वो परमेश्वर के लिए नहीं है। High priest is for man. वो मनुष्यों के लिए है। Now when Jesus became high priest, जब यीशु महायाजक बने, who is he for? वो किसके लिए बने? He's sitting at the right hand of the Father. वो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। For God or for me? परमेश्वर के लिए या हमारे लिए? मेरे लिए। Amen.
Today Jesus is seated on the highest throne for God or for me. आज यीशु सबसे बड़े सिंहासन पे किसके लिए बैठे हैं? परमेश्वर के लिए या हमारे लिए? Now you will understand. अब आपको समझ में आएगा God so loved the world that he gave his only begotten. कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। So first God gave him. परमेश्वर ने पहले उसको दिया, From God to man. परमेश्वर से मनुष्यों को। But when God received him, जब परमेश्वर ने उसे वापस लिया, from man for man. मनुष्यों से मनुष्यों के लिए। Amen. You understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Do you see what God did? आप देख पा रहे हैं परमेश्वर ने क्या किया है? I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताता हूँ। Before Jesus came on earth, इसके पहले कि यीशु धरती पर आए, no one prayed in heaven. किसी ने स्वर्ग में प्रार्थना नहीं की थी। Heaven did not know prayer and intercession. जो स्वर्ग है वो प्रार्थना और निवेदन नहीं जानता था, Only worship. सिर्फ वहां पे वर्शिप होती In थी। heaven, one activity, worship dominated. एक ही कार्य है जो लगातार स्वर्ग में होता था, वो वर्शिप। So when Jesus came, जब यीशु आए, he brought that activity to earth. वो स्वर्ग से उस बात को नीचे लेकर आए And he said to Samaritan women in John chapter 4, और उन्होंने उस सामरी स्त्री को कहा, चौथे अध्याय में यूहन्ना के, from now, अब से true worshippers will rise, सच्चे आराधक खड़े होंगे who will worship God with spirit and truth. जो आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। What do you understand by worshiping God with spirit? आप क्या समझते हैं आत्मा से आराधना करना? Before Jesus rose up, nobody's spirit became one with God. यीशु के जी उठने के पहले किसी की आत्मा परमेश्वर के साथ एक नहीं हुई। When Jesus paid the price and rose up, now the great Messiah changed my spirit and God's spirit. He put them together, made one और जब spirit. यीशु जी उठे, उन्होंने अपनी आत्मा और मनुष्य की आत्मा को एक कर दिया That is where my worship became. और वहां से आराधना शुरू हुई। What we come here and sing is not worship, it's the expression of worship. हम जो आके आराधना करते हैं वो आराधना नहीं है, वो आराधना का एक एक्सप्रेशन है। When we lift up our hands, it's not worship, it's an expression of worship. जब हम हाथ उठाते हैं तो वो आराधना नहीं, आराधना का एक एक्सप्रेशन है। When we clap, it's not worship, it's an expression of worship. जब हम तालियां बजाते हैं वो भी एक आराधना का एक्सप्रेशन है। Worship is when I and he, we commune together. जब आराधना हुआ जब मैं और वो एक हो जाता है। Amen? You understanding? क्या आप समझ That रहे was हैं? only possible after resurrection of Jesus. ये तभी संभव था जब यीशु जी उठते। So think about the great God's plan. अब परमेश्वर की उस बड़ी प्लानिंग को समझिए। He sends Jesus, उन्होंने यीशु को भेजा, heavenly man on earth, जो स्वर्गीय है उसे धरती पर भेजा for God, पिता के लिए, as Messiah, एक मसीहा बनके for God. पिता के लिए, परमेश्वर के लिए He comes वो आते हैं and then redeems man. और मनुष्यों को छुड़ाते हैं। Jesus said, I have come on this earth to fulfill your will. मैं धरती पे इसलिए आया था कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। I don't do anything unless I see you do it. मैं वो जब तक मैं तुझे करते हुए नहीं देखता मैं नहीं करता। So who was he working for when he was here? जब वो यहाँ थे किसके लिए काम कर रहे थे? God, पिता के लिए, परमेश्वर के लिए। right? So from God, for God. पिता से पिता के लिए। But when he went back, पर जब वापस गए, from people, for people. मनुष्यों से मनुष्यों के लिए। Do you realize? क्या आप समझ पा Do you रहे हैं? understand? क्या आप समझ पा Do रहे you हैं? understand? क्या आप समझ पा Hello, रहे do हैं? you understand? क्या आप समझ पा रहे Do हैं? you understand? क्या आप समझ पा So रहे when Jesus came from heaven, he brought worship for us. जब वो स्वर्ग से आए, वो आपके और मेरे लिए आराधना लेकर आए। What Father delights in, he gave it to us. जिसमें पिता को आनंद है उन्होंने हमको दे दिया। But when he went back to heaven, पर जब वो यहाँ से वापस he गए, took something from earth to heaven. वो यहाँ से कुछ स्वर्ग लेकर गए। You know what he took? और आपको पता है वो क्या लेके गए? Intercession. निवेदन की सेवकाई। Now he sits at the right hand of God, interceding for you and अब वो I. पिता के दाहिनी ओर बैठकर आपके और मेरे लिए निवेदन करते हैं। That high priest is constantly talking about us. वो लगातार आपके और मेरे विषय में बात करते That हैं। high priest is constantly speaking about वो us. महायाजक लगातार आपके मेरे विषय में बात करते Good हैं, things, praying. अच्छी बातें करते हैं। Wonderful. अद्भुत है। Isn't it amazing क्या ये अद्भुत नहीं that है? when Jesus came, he brought worship down. जब वो नीचे आए तो वो वर्शिप लेकर आए When he went back, he took prayer up. और जब वो ऊपर गए तो प्रार्थना लेकर गए। That's why इसलिए those who love the Lord वो पर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं engages themselves in worship and prayer. वो प्रार्थना और से आराधना में अपने आप को डालते हैं।
It is not a ritual or a religion. यह कोई रीति नहीं है, It is a lifestyle. ये एक जीवन जीने का तरीका है। I want you to see this. मैं चाहता हूं आप इस बात को देखें। Now please look at something. अब देखिए यहाँ पर High priest from people for people. महायाजक मनुष्यों में से मनुष्य के लिए। But next verse says, पर अगला पद कहता है unto God. परमेश्वर से संबंध रखती हैं, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है। Okay. Everything that God, it pertains to God. जितनी बातें परमेश्वर से संबंध रखती हैं, Everything that pertains to God. सारी बातें जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, For that, उन बातों के लिए one person is selected. एक व्यक्ति चुना जाता है And God makes him representative of everyone और else. वो उन सब व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है Yeah. Pertaining God's things. जो परमेश्वर से संबंध रखती है उन बातों के He विषय में। understands holiness. उसे पवित्रता की समझ He है, understands everything. वो सब बातें समझता Now है that high priest और वो महायाजक is from people, लोगों में से लिया जाता है, for people, मनुष्यों के लिए लिया जाता है, unto God. परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए। You understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? From people, मनुष्यों में से for people, मनुष्यों के लिए unto God. परमेश्वर से संबंध रखने That's के why लिए। if God accepts the high priest, इसलिए जब परमेश्वर महायाजक को स्वीकार करते हैं, nation is blessed. पूरे देश को आशीष मिलती है। If God rejects the high priest, और अगर परमेश्वर महायाजक को तिरस्कार करते हैं, nation is cursed. उस पूरे देश पे श्राप पड़ता है। Why? क्यों? People may be good, लोग अच्छे होंगे, but if high priest is bad, पर अगर महायाजक अच्छा नहीं है, their goodness means nothing. उनकी अच्छाई किसी काम की नहीं। But if people are bad, और अगर लोग बुरे हैं, high priest is good, महायाजक अच्छा है, God will look at high priest and bless them. और परमेश्वर महायाजक को देखकर इन्हें आशीष देगा। If they are good, अगर वो अच्छे हैं, high priest is bad, महायाजक बुरा है, God will look at high priest and deal with them. परमेश्वर महायाजक को देखकर इन लोगों के साथ व्यवहार Their करेगा। goodness qualifies for nothing. उनकी अच्छाई किसी काम की नहीं। It's all about high priest. ये सब कुछ महायाजक के विषय में है। They can be wicked. वो बुरे हो सकते हैं, They bring sacrifice. वो बलि लेके आते हैं, High priest takes the blood, महायाजक रक्त लेता है, goes into the most holy place. परम पवित्र स्थान पे जाता है। If God accepts high priest, अगर परमेश्वर महायाजक को स्वीकार this करते guy हैं, is free. ये बच जाते हैं। If God rejects high priest, पर परमेश्वर अगर महायाजक को स्वीकार नहीं his करते, offering means nothing. ये बलि किसी काम की नहीं, His dedication means इन nothing. लोगों की श्रद्धा किसी काम की His नहीं, repentance means nothing. उनका पश्चाताप किसी काम का नहीं, Nothing means nothing. कुछ भी नहीं होगा इनके। He will be destroyed. ये खत्म हो जाएंगे। Everything depends on one person, high priest. सब कुछ एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है, वो महायाजक है। Now look about अब सोचिए इस विषय पे, when Jesus entered heaven, जब यीशु स्वर्ग में आए, God received him. परमेश्वर ने इनको स्वीकार किया। My high priest has been received. जो मेरा महायाजक है वो स्वीकार कर लिया गया। I will continue to walk in blessing even if I falter. मैं अगर गलती करूं तो भी मैं आशीषों में चलता रहूंगा। Why? क्यों? You remember the message I taught? आपको पता है जो बात मैंने आपको सिखाई थी, From Deuteronomy 28, he plucked us out and put us into Isaiah 54. यशाया 28वें अध्याय से निकाल के हमें व्यवस्था विवरण 28 से निकाल के यशाया 54 में परमेश्वर ने डाला। Why? क्यों? Isaiah 53 happened. क्योंकि 53वां अध्याय यशाया का हुआ। Now if you go deeper, अगर आप गहराई में you जाएंगे, begin to understand. आप समझेंगे। From if, उस यदि से, we move to because. क्योंकि में हम आ गए हैं। If you obey, अगर आप आज्ञा मानोगे, it is no longer my criteria. अब मेरे पे ये नहीं होता, Because Christ obeyed क्योंकि यीशु ने आज्ञा मानी है। is my criteria. ये मेरा क्राइटेरिया है। Hello? When David fought Goliath जब दाऊद ने गोलायत से लड़ाई लड़ाई and killed Goliath, उसे मार दिया, the victory was not just David's. वो सिर्फ दाऊद की जय नहीं थी, Whole Israel was victorious. पूरा इजराइल जीता उसके साथ। Why? क्यों? Because if your representative win, our nation is defeated. आपका जो रिप्रेजेंटेटिव अगर वो जीतेगा तो पूरा देश जीतेगा, नहीं तो When नहीं। God picked up a high priest, जब परमेश्वर एक महायाजक चुनता है, it was like David for Israel. वो दाऊद के समान है इजराइल के लिए। If he wins, अगर वो जीतता है, nation wins. पूरा देश जीतेगा। Jesus on the cross won it. और यीशु ने क्रूस पर जीता है, And because Jesus won it, और चूंकि यीशु ने जीता you है, and I are called more than conquerors. इसलिए आप और मैं जैवन से बढ़कर कहलाए जाते हैं। Hallelujah. Why are you and I more than आप और मैं conquerors? क्यों जैवन से बढ़कर है?
Because of Jesus' क्योंकि victory. यीशु ने जय पार, Not because of your इसलिए qualification. कि आप काबिल हैं, Because of the price he क्योंकि paid. जो प्राइस, जो मूल्य यीशु ने पे किया है, Because of the fight he fought. क्योंकि जो लड़ाई उसने लड़ी है, Because of the victory he क्योंकि obtained. जो वह विजय उसने प्राप्त की है, I became the beneficiary of his works. मैं उसके काम से लाभान्वित होता हूँ. That's why when Jesus said it is finished, it was a victorious chant. इसलिए जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, वो आपके लिए जय का उद्घोष था. Why? क्यों? The ministry of Messiah was coming to an end. क्योंकि जो मसीहा की सेवकाई है वो पूरी हो रही थी, And a new ministry was born, high priest. और एक नई सेवकाई शुरू होती है महायाजक की. Hallelujah. Are you seeing that? क्या आप देख पा रहे हैं? Now look into the word. देखिए वचन में क्या लिखा है. I want you to really understand मैं this. चाहता हूँ इस बात को ध्यान से समझें. Exodus chapter 28 verse number 36. मेरे मन उसका 28वां अध्याय उसका 36वां. 28 verse number 36. Are you there? क्या पहुंच गए? Amen? Okay. Listen to it carefully. देखिए क्या लिखा है. पढ़िए. फिर चोखे सोने से एक टीका बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र. Now the Bible is talking here about the garments of the high priest. और वचन यहाँ पर जो महायाजक है उसके कपड़ों के बारे में बता रही है. And one first thing that God tells, और जो पहली बात परमेश्वर ने कहा, give him a crown. उसे एक क्राउन पहनाना. On the crown, उस क्राउन पे it needs to be of pure gold. वो पवित्र सोने से बना हुआ हो, Pure gold. एकदम शुद्ध सोने से बना हो. And then carve upon it. उसके ऊपर गोद के एक बात लिखना. Carve. उसमें एकदम गोद कर एक बात Don't write लिखना. with pen. पेन से नहीं लिखना, Because that can fade out. वो मिट सकता है, That can be wiped out. वो मिटाया जा सकता है. Carve it. उसको खोद कर लिखना, Permanent. हमेशा के लिए. Once it is carved, you cannot change it. एक बार जब वो खोद के लिखा जाता है, उसे मिटा नहीं सकते. Permanent work. हमेशा के लिए लिख दीजिए. And on that crown, write holiness unto God. उसमें लिखना यहोवा के लिए पवित्र. Listen. High priest is from people, जो महायाजक है वो मनुष्यों में से लिया जाता है, for people, मनुष्यों के लिए लिया जाता है, unto God. परमेश्वर के लिए. So take him from people, लोगों में से लिया गया, for people, लोगों के लिए but लिया on गया, his forehead, पर उसके यहाँ पर लिखा हुआ है, write down लिखा हुआ है holiness unto God. यहोवा के लिए पवित्र. Amen. Okay? In him there was no impurity. In उसमें Jesus. कुछ भी अशुद्धता नहीं थी. He was holiness unto God. वो परमेश्वर के लिए पवित्र था. Our high priest is holiness unto God. जो हमारा महायाजक है वो पर यहोवा के लिए पवित्र है. Now watch. अब समझिए Why क्यों to write holiness unto God on his forehead? वो उसके माथे पे क्यों लिखा जाना था यहोवा के लिए Verse पवित्र? number 38. उसका 28वां पद कहता है, Read. और हारून के माथे पर रहे. That means that crown needs to be on the head of high priest Aaron. वो हारून के माथे पे रखा जाना है. Okay? Holiness unto God. यहोवा के लिए पवित्र. Whole congregation is not wearing it. सारे लोग नहीं पहन रहे, Only one man is wearing it. सिर्फ एक मनुष्य पहनेगा. He is the representative of whole वो nation. सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है. His crown says holiness unto और God. उसके क्राउन पे लिखा हुआ है यहोवा के लिए पवित्र. Everybody's mind wonders, right? हम सोच सकते हैं, In our thought we do sin. हम अपने मन में पाप करते हैं, And our biggest struggle is, Lord, how do I get rid of this thought? और हम अल्लाह से सोचते, प्रभु मैं इससे कैसे मुक्ति पा सकता हूँ. Lord, there are jealousies in my mind. मेरे मन में जलन होती है There is प्रभु. pride in my मेरे मन mind. में घमंड होता है There is प्रभु. lust in my मेरे मन mind. में लालच होता There है. is lie in my मेरे मन में mind. झूठ है प्रभु. Lord, there are problems in my मेरे मन mind. में बहुत कुछ है I प्रभु. come for worship. मैं आराधना के लिए आता हूँ. I lift up my मैं अपने hands. हाथ उठाता I'm हूँ. singing holy. मैं होली होली But करके, in my mind, I'm thinking about things that are unholy. पर मेरे मन में मैं वो सोचूं जो अपवित्र है. God, how is it going to be? मैं कैसे ये होगा प्रभु? Lord is saying, son, परमेश्वर कहता है बेटा, it is not written on your head, holiness unto God. It is written on his head, holiness unto God. तुम्हारे माथे पे नहीं लिखा परमेश्वर के लिए पवित्र, पर उसके सर पे लिखा है यहोवा के लिए पवित्र. Listen, सुनो, your representative, जो Jesus, जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव यीशु है, is your high priest. वो आपका महायाजक है, On his और forehead, उसके माथे पे लिखा है, it's written, ये लिखा हुआ है holiness unto God. यहोवा के लिए पवित्र. But God, Jesus is holy. पर यीशु तो पवित्र है प्रभु. I am holy.
I am unholy. मैं अपवित्र हूँ। You're gonna not judge Jesus, you're gonna judge me. आप उनका नहीं मेरा न्याय करेंगे। Hold on, read your Bible carefully. अपने वचन को ध्यान से पढ़ो। Verse number 38. 28वां पद कहता Go है, ahead, brother, read. और हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इज़राइल जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ाए, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे। एक मिनट, किसका दोष? उन सब पवित्र वस्तुओं का दोष। हेलो, blemish in the holy things. वो पवित्र चीजों में दोषी ठहरे। अरे बाबा, listen carefully. ध्यान से सुनिए इस बात को। Our holiness is also impure. जो हमारी पवित्रता ही है वो परमेश्वर सामने अपवित्र है। इसलिए तुम्हारी धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है। आमीन। It is written on the forehead of Aaron's crown. हारून के क्राउन के ऊपर लिखा हुआ है, Holiness unto Lord. परमेश्वर के लिए पवित्र। Why? क्यों? Because even in the holy things that Israel offered, there is blemish. वो जो चीज पवित्र वस्तु इजराइल के लोग लेके आ रहे हैं, And it's a substitute for that. वो उन बातों के लिए हारून पे दोष है। I may come for worship, मैं प्रार्थना के लिए मैं I may आराधना के लिए pray. आता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, but my sinful thought continue to battle. पर मेरा जो पाप में स्वभाव है वो लगातार संघर्ष करता है। होता है किसी के साथ, किसी पास्टर के साथ होता है, होता है। And we think God did not hear my prayer today. और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं Why सुनेगा। my mind was not stable. मेरा मन स्थिर नहीं था। God is not dealing with you based on your mind. God is dealing with you based on His mind. परमेश्वर आपके साथ आपका मन देखकर व्यवहार नहीं करते, वो उसका मन देखकर आपके साथ व्यवहार करते हैं। Do you understand, church? क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? If you are disturbed, अगर आप बेचैन हैं, that does not remove God from you. परमेश्वर उस बात से हट नहीं जाता। If you are angry, अगर आप क्रोधित हैं, that doesn't remove God from वो you. परमेश्वर को नहीं हटाता। If you are battling lust in your और mind, अपने मन में गंदी बातों से अगर आप it संघर्ष कर doesn't रहे हैं, remove God from you. वो परमेश्वर को नहीं हटाता आपके लिए। Why? क्यों? Because holiness unto God is written on His mind so that He may bear my iniquity in my holy things. क्योंकि यहोवा के लिए पवित्र उसके माथे पे लिखा है ताकि वो आपके और मेरे वस्तुओं का दोष उठाए। In my early years, Samir, in ministry, जब मैं अपने सेवकाई के शुरुआती दिनों में था, I would go for crusade ground. मैं क्रूसेड्स में जाता था, I would lock myself. मैं अपने आप को बंद कर लेता I था, would fast. I would pray. मैं लगातार प्रार्थना करता था, And I would not sleep all night. मैं पूरी सारी रात नहीं सोता था। Lord, do something. परमेश्वर कुछ कर। As if what is going to happen dependent on my last night's prayer. ऐसा था कि जो कुछ होने वाला है वो मेरी प्रार्थना पे डिपेंड करता है। Because everything I learned like that. मैंने ऐसा ही सीखा था। But one day, पर एक दिन Holy Spirit taught me. परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया, He said, son, अरे बेटा, what's the use of having Jesus क्या फायदा है यीशु के होने का? if you're going to continue to do which He's supposed to do? आप तू लगातार वो करता रहेगा जो उसको करना है। Let Him take this yoke. अब उसे ये जुआ उठाने दे। He said, my yoke is easy. उसने कहा मेरा जुआ हल्का है। Before becoming born again, नया जन्म प्राप्त करने के you were पहले struggling with this thing. आप इन चीजों से संघर्ष करते You थे। became born again. आप नया जन्म पाए, You're still struggling with the आप same फिर thing. भी इन बातों से संघर्ष कर रहे What's हैं। the point of coming to Jesus then? फिर यीशु के पास आने का क्या फायदा? If coming to Jesus, you remain in that same struggle that you were there, अगर उन्हीं संघर्षों में आप बने हुए यीशु के पास आने के बाद भी, it's because you have not allowed Him to take over. क्योंकि आपने अब उसको जगह नहीं दी कि वो टेक ओवर कर सके। We say, Lord, let your will be done, हम कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, but I will continue to do what I am doing. पर मैं वही करता रहूंगा जो मुझे करना है। Simple thing. बहुत साधारण When है। you say your will be done, जब आप कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी it पूरी is हो, His will that your high priest represents you to Him. ये उसकी मर्जी है कि आपका महायाजक आपको रिप्रेजेंट करे। You don't represent you to Him. आप अपने आप को लेकर रिप्रेजेंट मत कीजिए परमेश्वर के सामने। Your high priest represents you to Him. आपका महायाजक आपको रिप्रेजेंट करे परमेश्वर के It is the सामने। will of God. ये परमेश्वर की मर्जी है। Moses did not do anything on his own. God showed him the realities of heaven and said, like this, create there. मूसा ने कुछ भी खुद से नहीं किया, जो कुछ परमेश्वर ने स्वर्ग का दिखाया उसने वैसा वैसा बनवाया। He showed him the pattern of the high priest. उसने महायाजक का पैटर्न दिखाया On the earth he did it. और सब कुछ उसने वैसा ही धरती पे The बनाया। real one is Jesus. जो सच्चा है वो परमेश्वर He is यीशु your है। and my वो representative. आपका और मेरा रिप्रेजेंटेटिव Now है। when I come to Jesus, जब मैं यीशु के पास आता हूँ, don't worry, my thoughts are not powerful. मैं अपने विचारों के बारे में सोचता नहीं, वो बहुत सामर्थ्य नहीं है।
His thoughts are more powerful. उसकी सोच सामर्थ्य है। And God is not dealing with me based on what I am thinking. God is dealing with me based on what He is thinking. परमेश्वर मेरे साथ मेरे विचारों के हिसाब से व्यवहार नहीं करते, वो हमारे साथ यीशु के विचारों के हिसाब से व्यवहार करते हैं। Now some of you will say, अरे pastor ऐसा होता क्या? Read your Bible. अपना वचन पढ़िए। Read what it says. और हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इज़राइल जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ाए, उन पवित्र वस्तुओं को दोष हारून उठा रहे, और वह नित्य उसके माथे पे रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। Hello. Last line. Again read it. वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। Once again. वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। Now let me show you something. अब मुझे कुछ दिखाने दीजिए। Holiness unto God should be inscribed on the forehead of the high priest's crown forever. जो महायाजक के सर का मुकुट है, उस पे लिखा हुआ रहना चाहिए यहोवा के लिए पवित्र। Right? यस, So that God will be pleased from him forever. कि परमेश्वर उससे प्रसन्न रहे, उसके लिए। So that God will be pleased for them. यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। उसके माथे पे लिखना उनसे प्रसन्न होने के लिए। वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। उसके माथे पे उससे प्रसन्न होने के लिए नहीं है, उसके माथे पे हमसे प्रसन्न होने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, समझ आ रहा है क्या आपको? हालेलुया। Hello? Hello? How many of you have a question? God, are you happy with me? आप लोगों से कितने मन में सवाल है कि प्रभु क्या मुझसे तू प्रसन्न है? Lord, I thought I will wake up 4 o'clock and I'll pray, but I could not pray, Lord. I just slept till 8 o'clock and then it was late for the church, so I didn't pray, Lord. मैं सोचा था प्रभु मैं 4 बजे सुबह उठ के तुझसे प्रार्थना करूंगा, पर मैं उठ नहीं पाया। मैं 8 बजे उठा और तभी प्रार्थना नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जल्दी चर्च आना So था। you are angry with me now. तो प्रभु अब तुम मुझसे क्रोधित है। The Bible says, वचन कहता है उसके माथे पे पवित्र इसलिए लिखा है ताकि परमेश्वर तेरे से प्रसन्न रहे। हालेलुया, हालेलुया। Are you understanding, my friend? क्या आप समझ पा रहे हैं? That's why don't try to please God. परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास ना करें। It's written on my high priest's forehead. मेरे महायाजक के सर पे लिखा हुआ है। Where is he sitting? वो कहाँ बैठा You है? remember one day I told you, God is always in good mood. मैंने एक दिन आपको बताया था कि परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। Many of you did not understand it. आप में से बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाए। Let me tell you a theological reason why I say मैं that. आपको थियोलॉजिकली ये बात समझाता हूँ ऐसा कैसे होता है। Jesus is sitting where? यीशु कहाँ बैठे हैं? On the right hand of Father. वो पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। What is Father looking at? आप पिता किसको देख रहे हैं? Jesus. What is on his forehead? और उनके सर पे क्या है? Holiness unto God. Now when God looks at that, what happens to God? और जब पिता उसको देखते हैं उनको क्या महसूस होता होगा? Huh? It pleases God. Amen. So is God in happy mood? Always. Devil will always tell you to look at yourself. शैतान हमेशा आपको बोलेगा अपने आप को देखने के लिए। Religion will always teach you to look at your own self. धर्म हमेशा आपको सिखाएगा अपने आप को देखने के लिए। Jesus, the high priest, says, पर यीशु जो महायाजक है, no longer you, I live through you. अब तुम नहीं, मैं तुम्हारे द्वारा जीवित हूँ। My friend, मेरे दोस्तों, holiness unto God is on his head. परमेश्वर के लिए पवित्र उसके माथे पर है। Not because Jesus is holy. इसलिए कि यीशु पवित्र है, It's not because of that. इसके लिए नहीं, It is so that God can be happy with me. इसलिए कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहे। एक और बार कोई इंग्लिश में पढ़ देगा क्या? Verse number 38. Exodus 28:38. And it shall be upon Aaron's forehead And it shall be upon Aaron the high priest's forehead. वो हारून के सर पे रहे, that Aaron may bear the iniquity of the holy things, That Aaron may bear the iniquity of the holy things. ताकि हारून उन पवित्र वस्तुओं का दोष उठाए। That means there are iniquity in holy things. उन पवित्र चीजों में भी दोष है। These holy things are not pertaining to God. These holy things are pertaining to us. ये पवित्र वस्तु परमेश्वर से संबंध रखती है, हमसे संबंध रखती है। So every holy act we do, there is still iniquity. हम कुछ भी पवित्र करें उसमें कुछ ना कुछ दोष रहता ही Do है। you know when we give offering?
जब हम ऑफरिंग देते there हैं is still selfishness inside. उसमें फिर भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता There है, is still pride inside. उसमें कहीं ना कहीं घमंड होता है। So you know what God is saying? और इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे Your हैं, most holy thing is still contaminated. आपके पास जो आपका जो सबसे पवित्र है उसमें कुछ ना कुछ तो दोष है ही। But for that, उसके लिए solution is not your purity. आपकी पवित्रता ही सॉल्यूशन नहीं है, Solution is your representative's forehead. आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके माथे पे क्या है वो उसका सॉल्यूशन उसके दिमाग पे लिखा है holiness unto God. है। आमेन। God is not judging Vivian on what is going on in Vivian's mind. God is judging Vivian on what's going on in Christ's mind. परमेश्वर विवियन का न्याय इस बात पे नहीं कर रहे कि विवियन के मन में क्या चल रहा है, वो उसका न्याय इस बात पे कर रहे हैं कि यीशु के मन में क्या है। Now Bible says he is my head. और वचन कहता है वो मेरा सिर है। हालेलुया। I am his body. मैं उसकी देह हूँ। No longer guilt and shame can affect me. अब शर्म और पश्चाताप मेरे में काम नहीं करता, Lie cannot help me. झूठ मुझ पे काम नहीं करता, Hell is not my problem. नरक मेरी समस्या नहीं है, Sin is not my पाप problem. मेरी समस्या नहीं My है, Messiah dealt with it. मेरा मसीहा उससे डील कर चुका My है। curse and demons are not my problem. अब श्राप और दुष्टात्मा मेरी समस्या नहीं My है, Messiah dealt with it. मेरा यीशु से डील कर चुका I है। am no longer earthly. I am heavenly. अब मैं धरती का नहीं, मैं स्वर्ग का हूँ। As Jesus is heavenly, I am heavenly. जैसा यीशु स्वर्ग का है वैसा मैं स्वर्ग का हूँ। Last Sunday we saw this. हमने पिछले सप्ताह इस बात को देखा है। And now, और अब am I pleasing God? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा Is हूँ? my walk pleasing God? क्या मेरा चलना परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है? Stop living under this stress. इस परेशानी में जीना छोड़ दीजिए। Gospel is not gospel if you're struggling. सुसमाचार नहीं है अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो। Gospel is gospel that he is able and you just enjoy the ride. सुसमाचार ये है कि वो सामर्थ्य है और आप इस बात में एंजॉय कीजिए। The Bible says if our heart condemns us, God is bigger than our heart. वचन कहता है अगर हमारा मन हमें दोष दे तो हम परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। Get renewed in your mind. Get renewed in your mind. अपने मन में नया हो जाइए। You know, if your thinking goes against the word of God, अगर आपकी सोच परमेश्वर के वचन के अलग जाती है, stop believing your thinking, start believing the word. अपने सोच पे विश्वास मत कीजिए, परमेश्वर के वचन पे विश्वास Your कीजिए। life will never be the same again. आपका जीवन पहले के समान नहीं होगा। Come under the unction of your high priest. अपने महायाजक की सेवकाई के अंदर आइए। The moment you enter in through him, जब आप उसके पास आते हैं, उसके द्वारा आते हैं, oh, everything is beautiful. सब कुछ बहुत सुंदर है। Everything is beautiful. सब कुछ बहुत सुंदर है। Everything is beautiful. सब कुछ सुंदर है। Now let's look into the word. देखिए What does Bible say next line? which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts. And it shall be always upon his forehead. It shall be always upon his forehead. वो हमेशा उसके माथे पर रहे। Brother, what does always mean? What does always mean? ऑलवेज का क्या मतलब है? Brother Dingra, what does always mean? Always. That's why I say, once saved, always saved. आमीन। That's why I preach that if you become born again, there's no going back again. इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपने एक बार नया जन्म प्राण लिया तो वापस आप नहीं जा सकते। That's why I say, because what comes from Jesus is permanent, it has no expiry date. जो यीशु से आता है वो हमेशा के लिए, उसका कोई एक्सपायरी डेट The नहीं है। Bible declares on his forehead it is written permanently. इसलिए हमेशा उसके माथे पर रहे। What is written और permanently? क्या लिखा है उसके माथे पे हमेशा के लिए? बोलो, यहोवा यहोवा के लिए पवित्र। जोर से बोलो, यीशु यीशु आपके माथे पे है, आपके माथे पे है। आप यहोवा के लिए पवित्र है। आप यहोवा के लिए पवित्र हैं। इसका मुझे क्या फायदा? इसका मुझे बोलो बोलो बोलो, इसका मुझे क्या फायदा? इसका मुझे क्या फायदा? इसका मुझे क्या फायदा? बोलो भाई, पढ़ो। That they may be accepted before the Lord. That they may be accepted before वो the Lord. परमेश्वर के सामने स्वीकार्य हो। You know, Jesus is holy to God, यीशु परमेश्वर के सामने पवित्र है, not so that Jesus be accepted. इसलिए नहीं कि यीशु स्वीकार किए जाए, He is accepted anyways. वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है।
But that's why Jesus said, my going is beneficial for you. इसलिए यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है. You remember what Jesus said? आपको याद है? Hey, listen, when I'm going, it's going to be good for you. उन्होंने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है. Why? क्यों? Because you cannot control your mind. क्योंकि तुम अपने विचारों को संभाल नहीं I'm going सकते. to deal with your mind permanently. मैं तुम्हारे विचारों से हमेशा के लिए डील I'm going करूंगा. to remove it from the equation forever. मैं इक्वेशन से उसको हटा दूंगा. अब उसमें कुछ भी चलने दो, it doesn't count. अब उसमें कुछ भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Why? क्यों? It's been imputed. How many of you understand three-phase electricity? आप में से कितनों को 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी का फंडा समझ में आता है? If the power gets off from one side, अगर एक तरफ से पावर कट जाए, you just switch one channel and the power supply starts from another channel. आप उसको बदल दे सिर्फ उस लीवर को तो दूसरी तरफ से पावर. So my mind power circuit short. मेरे दिमाग का जो पावर सर्किट है वो खराब हो गया. Rather than repairing my mind, he just changed the socket. अब उसको बजाय ठीक करने के प्रभु ने लीवर चेंज कर दिया. Now supply is from his mind. अब जो सोच है वो यीशु की तरफ से है. Amen, amen. You understand? Hello? इसलिए अपना दिमाग क्रिश्चियन लाइफ में नहीं लगाते. This is the reality of a born again child of God. ये नए जन्मे हुए बच्चे की सच्चाई है यीशु में. He is holiness unto God, वो यहोवा के लिए पवित्र है, so that we can be accepted to God. इसलिए हम परमेश्वर को स्वीकार्य हैं. Now my question, अब मेरा सवाल है, when you commit sin, जब आप पाप करते हैं, devil will tell you, शैतान आपको बताता है you cannot be intimate with God because you committed sin. आप परमेश्वर से एक नहीं हो सकते क्योंकि आपने पाप किया है. And you believe that. और आप इस बात पे विश्वास करते हैं. मैं पाप हुए हूँ ब्रदर, मेरे प्रार्थना में पवित्र आत्मा नहीं है, मेरी बातों में पवित्र आत्मा नहीं है. God is far away from me. How many of you feel like that? आप में से कितना ऐसा महसूस करते हैं कई बार? God is far because मैं उतना प्रार्थना नहीं करती, परमेश्वर मुझसे बहुत दूर है क्योंकि मैं बहुत प्रार्थना नहीं मैं उतना बाइबल नहीं पढ़ती, मैं फास्टिंग नहीं करती. मैं उतना वचन नहीं पढ़ता, इसलिए परमेश्वर मुझसे दूर है. मेरी वाइफ को पूछो, शादी से पहले मैंने फास्टिंग किया था, अब तक किया ही नहीं. If you like to fast, fast. अगर आपको उपवास रखना है रखिए. I get hungry. मुझे भूख लग जाती है, I eat. मैं खा लेता हूँ. What I'm trying to say, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, your intimacy with God has nothing to do with your fasting. आपकी जो पिता से घनिष्ठता है उसमें आपके उपवास का कोई योगदान नहीं. Today I want to tell you, मुझे बताने दीजिए, your holiness has nothing to do with Him. आपकी पवित्रता का उससे कोई संबंध नहीं है. His holiness qualifies you. उसकी पवित्रता ही आपको योग्य बनाती है. He is the one who is your representative. वो है जो आपको मुझको रिप्रेजेंट And the करता है. more you behold the apostle and the high priest, जितना आप उस प्रेरित और महायाजक को देखेंगे, you will start living heavenly life. उतना आप स्वर्गीय जीवन जी पाएंगे. You understand, my friend? Amen. That's why Paul writes to the church, or the writer of the Hebrew writes to the church, Is- behold the apostle and the great high priest. इसलिए पौलुस लिखता है कि उस महायाजक को और पवित्र प्रेरित को देखते रहो. Okay? Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? I want to go slow. I want to dig it in your heart. मैं चाहता हूँ इस बात में आपके मनों में खोद दूं. Jesus is your high priest. यीशु आपके महायाजक है On his forehead is written holiness unto God. और उनके सर पे माथे पे लिखा है यहोवा के लिए पवित्र. Because God is pleased with him, चूंकि परमेश्वर से प्रसन्न है, you and I are welcomed. आप और मैं स्वीकार्य हैं, स्वागत में हैं. You understand this much? क्या आप समझ गए यहाँ तक? You understand this much? क्या आप समझ गए इतना? You understand this much? क्या आप समझ गए? You understand this much? क्या आप समझ गए? Many people don't come to church because उनका मूड खराब था. नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा. But this is the reality. Because what goes on here will define what you do. जो आपके मन में होता है वही आप करते हैं. When you wake up Sunday morning knowing I am accepted, पर जब आप संडे उठते हैं ये जान के कि आप स्वीकार कर I लिए गए am हैं, celebrated, मैं उत्सव की तरह मनाया you जाता हूँ, run to show yourself to your daddy. आप दौड़ कर अपने पिता के समीप आते हैं Because you're not guilty. क्योंकि आपके मन में कोई ग्लानि नहीं, You know on his forehead forever it is written holiness unto God. क्योंकि उसके माथे पे सदा के लिए लिख दिया गया है यहोवा के लिए पवित्र. Right? Amen. Forever. हमेशा के लिए. And do you know something? और आपको पता है The day God wrote holiness unto God for his high priest, जिस दिन परमेश्वर ने अपने महायाजक के लिए लिख दिया यहोवा के लिए पवित्र, he is from people for people. वो मनुष्यों से मनुष्यों के लिए है. Now listen,
अब समझिए, Your and my sin cannot remove that inscription from him. आपका और मेरा पाप उसके माथे पे लिखा हुआ मिटा नहीं सकता। But जो उसके माथे पे लिखा है वो हमारे पापों को मिटा देता है। हालेलुया। I want you to realize that. मैं चाहता हूँ इस बात को समझे। That's the current ministry of Jesus. ये यीशु की वर्तमान सेवकाई है।